Hello students, welcome to VT online classes. Very good morning. ମୁଁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ମହାରଣା ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜିର କ୍ଲାସକୁ। ଆମେ ଆଜି ପଢ଼ିବା CBSE 10th ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ର ଇଂଲିଶ ଫାଷ୍ଟ ଫ୍ଲାଇଟ୍। ତ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଫ୍ଲାଇଟ୍ର ସେକେଣ୍ଡ ଚାପ୍ଟର ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଥିଲେ ଆମେ ନେଲସନ୍ ମାଣ୍ଡେଲା ଲଙ୍ଗ୍ ୱାକ୍ ଟୁ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍। ତ ଆମର ଯାତ୍ରା ଅଧା ରହିଯାଇଛି, ତାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆଜି। ତ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେମାନେ ପଢ଼ିଥିଲେ କେମିତି ନା ଶପଥ ପାଠ ନେଇଛନ୍ତି କିଏ ନେଲସନ୍ ମାଣ୍ଡେଲା। ଦେନ୍ ଶପଥ ପାଠ ନେବା ପରେ ଆମର ଆମ୍ଫି ଥିଏଟର ହଲ୍ର ଉପରେ କେମିତି ସବୁ ଇଏ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନା ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଉଁ ଜେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଉଡ଼ିଥିଲେ, ହଁ, ଆଉ ଜେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ କେମିତି ନିଜର ଆଖି ଉଠେଇ ସେମାନେ ଦେଖିଥିଲେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ, ସେ ବିଷୟ ପଢ଼ିଥିଲେ ଆମେ କାଲି। ଆଉ କେମିତି ଆମର କ'ଣ କୁହାଯିବ ମିଲିଟାରୀ ଅଫିସର୍ସ, ହଁ, ଯେଉଁ ଜେନେରାଲ୍ସ, ହାଏଷ୍ଟ ଜେନେରାଲ୍ସ କେମିତି ନେଲସନ୍ ମାଣ୍ଡେଲାଙ୍କୁ କେମିତି ସାଲ୍ୟୁଟ୍ କରିଥିଲେ। ତ ନେଲସନ୍ ମାଣ୍ଡେଲା ଏଠି କହିଥିଲେ ଯେ କ'ଣ ନା ଏମାନେ କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ଏମାନେ ମୋତେ ଆରେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଆଜି କ'ଣ ନା ସାଲ୍ୟୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା ନିଜର ଇତିହାସ ବା ଅତୀତରେ କରିଥିବା ବୀରତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ। ଆଉ ଚେଭ୍ରନ୍ ସେପ୍ର ମୁଁ କାଲି କହିଥିଲି, ଚେଭ୍ରନ୍ यानी ଏ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଇନ୍ ଦ ସେପ୍ ଅଫ୍ ଭି ସେପ୍ର ଏମିତି ସେପ୍ର ଗୋଟେ ପ୍ୟାଟର୍ନ, ବୁଝିଲା ନା ନାଇଁ, ଯେଉଁଠି କ'ଣ ହେଇଥିବ ନା କେମିତି କହିଥିଲା ବ୍ଲାକ୍, ରେଡ୍, ଗ୍ରୀନ୍, ବ୍ଲୁ ଆଣ୍ଡ ଗୋଲ୍ଡ, ବୁଝିଲା ନା ନାଇଁ। ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଧୂଆଁ ବାହାରିବ, ଯେମିତିକି ବ୍ଲାକ୍ ଦେନ୍ ତମର ଆସିବ ରେଡ୍ ଦେନ୍ ଆସିବ ତମର ଗ୍ରୀନ୍ ଦେନ୍ ତମର ଆସିବ ବ୍ଲୁ ଦେନ୍ ତମର ଆସିବ ଗୋଲ୍ଡ। ଏମିତି କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା 5 ପ୍ରକାର ସ୍ମୋକ୍ ବାହାରିଥିଲା ଆକାଶରେ, ସେମାନେ ଦେଖିଥିଲେ। କାଲି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଦ ଡେ, ହଁ, ତା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ସେହିଦିନ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ନା 2 ପ୍ରକାର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆନ୍ଥେମ୍ ଗାନ କଥା ମୁଁ ତ କାଲି ପଚାରିଥିଲି ମଧ୍ୟ ଲଟ୍ ଅଫ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ। ତ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଛି କି ନ କହିଛି ମନେ, ମୁଁ ପୁଣି ଏଗେନ୍ କହିଦେଉଥିଲେ। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେଉଁ ଥିଲା ଆମର ଯେ ଆମର ହୋଲ୍ ୱାର୍ଲଡ଼ରେ କେତେଟା କଣ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ମନେରଖ 195 କଣ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ମନେରଖ 195 କଣ୍ଟ୍ରି ଅଛି। କିଏ ମୁଁ କମେଣ୍ଟରେ ଦେଖିଲେ ଆମ ପିଲାମାନେ କିଏ 193 ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଟା ପିଲେ ଭୁଲ, 195 କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଅଛି। କ୍ଲିୟର? କାଲି ପଚାରିଥିଲି ମୁଁ ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସଙ୍ଗ୍ କ'ଣ, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆନ୍ଥେମ୍ କ'ଣ, ପିଲାମାନେ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସଙ୍ଗ୍ ହେଉଛି ଆମର ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ରିଟନ୍ ବାଇ ଚାଟାର୍ଜୀ। ଆଉ ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆନ୍ଥେମ୍ ଜାତୀୟ ଧୁନ୍ ହେଉଛି ଆମର ଜନଗଣ ମନ, ରିଟନ୍ ବାଇ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର। ଆଉ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସଙ୍ଗ୍ ହେଉଛି ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ରିଟନ୍ ବାଇ ବଙ୍କିମ୍ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଟାର୍ଜୀ। ତ ଏଠି ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ନା 2 ପ୍ରକାର ସେମାନଙ୍କ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆନ୍ଥେମ୍ ବୋଲାଯାଇଥିଲା। ହ୍ୱାଇଟ୍ ମାନେ यानी कि ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗ ମାନେ ତାଙ୍କର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସଙ୍ଗ୍ ବୋଲୁଥିଲେ, ଆଉ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଥିମ୍ ବୋଲୁଥିଲେ। ଆଉ ବ୍ଲାକ୍ ମାନେ यानी कि କୃଷ୍ଣକାୟ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଥିମ୍ ବୋଲୁଥିଲେ। ଏସବୁ ବିଷୟ କାଲି ଦେଖିଥିଲେ ଆମେ। ତ କହିଥିଲେ ଯେ କେମିତି ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ବୋର୍ ୱାର୍ ପରେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ କେମିତି ଆଫ୍ରିକାରେ ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି କୃଷ୍ଣକାୟ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭାରି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ, ସେ ବିଷୟ ଦେଖିଥିଲେ। ଆଉ କେମିତି ଇନହ୍ୟୁମାନ୍ यानी कि ଅମାନବିକତା କେମିତି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା, ହଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 20th ସେଞ୍ଚୁରୀର ଲାଷ୍ଟ ଡିକେଡ୍ ବେଳକୁ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ବୋଲି ଲେଖକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ତ ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆମର
पाठ देख That day had come about through the unimaginable sacrifice of thousands of my people whose sufferings and courage can never be counted or repaid. ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି the day had come about through the unimaginable sacrifice. ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିର ଏହି ଦିନଟି that day ମାନେ ଆଜିର ଏହି ଦିନଟି ବୁଝିଲା ନା ନାଇଁ यानी कि आमर कह कौन ना 10th मे 1994 10th मे 1994 तो आजिर यही दिनटी हाँ हेड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल मीन्स अकल्पनीय यानी कि आपकी सोच की बाहर तुम कल्पना भी नहीं कर सकते इतना सैक्रिफाइस हुआ है यानी एते लोक सैक्रिफाइस बलिदान देइछन्ते सैक्रिफाइस अर्थ बलिदान देवा त्याग बुझिला ना नहीं तो अकल्पनीय जो आम कहवा तो कौन है लेखक कहते हैं यही दिनटी आज यही दिनटी जो आसी केमिति आसी का जरिया आसी थ्रो का जरिया आसी ना अनइमेजिनेबल सैक्रिफाइस यानी अकल्पनीय सैक्रिफाइस अकल्पनीय त्याग अकल्पनीय बलिदान मध्य ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माय पीपल मो लोक मान लेखक कहते गर्वर सहित जे हजार हजार मो लोक मैंने कृष्ण के लोक मान बलिदान द्वारा आज यही दिन आसी पीपुल हु सफरिंग एंड करेज तो जो लोक मैंने सफर होती कष्ट पाई आउ एंड करेज आउ से उत्साह कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड तो तांकर जो पीड़ा तांकर जो कष्ट तांकर जो उत्साह ताको ना तो गणना करी हबो काउंटेड ना तो रिपेड यानी भरण करी हबो से माने जो माने दुख रे थिले जो मानकर कष्ट जो सेमानकर कष्ट सेमानकर दुख ना तो आम गणी पारिबा ना ताको भरणा करी पारिबा आई फेल्ट दैट एज आई हैव on so many other days that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me तो लेखक कहते आई फेल्ट दैट मु अनुभव करुची एज आई हैव ऑन सो मेनी अदर डेज तो लेखक कहते एमितिकार सो मेनी अदर डेज एमितिकार आहरी अनेक गुड़िए दिन आम पाखे अच्छी एमती साक्रिफाइसिंग हाँ त्याग बलिदान अनेक गुड़िए दिन आम पाखे अच्छी अनइमेजिनेबल अनेक गुड़िए दिन आम पाखे अच्छी अनेक गुड़िए मुहूर्त आम पाखे अच्छी दैट आई वाज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज आफ्रिकान पैट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर मी तो लेखक कहते आज दिनटी आज जो सफलता प्राप्त करें से जो सफलतार दिनटी केवल आम ही आसनी आम पूर्व एमती केते केते अनेक अनेक देशभक्त प्ले पैट्रियट्स मन पैट्रियट्स अर्थ देशभक्त मन पैट्रियट्स अर्थ देशभक्त देशभक्त पैट्रियट्स तो ये कहते ना कौन ना एमती आम भली अनेक गुड़िए आफ्रिकान पैट्रियट अच्छा आफ्रिका देशभक्त अच्छा तो सेमाने मध्य बहुत दिन तले एमती कौन माने ये झेल सही यानी बहुत कष्ट सही तो आजिर जो दिनटा केवल आम ही सफलतार दिन नुह से भी सफलतार दिन आउ से जो कष्ट जो दिन गुड़िक से कष्ट स्वीकार करते आजिर दिन हूँ से जो पुरातन समयर सबु प्रकार कष्टर फलाफल हूँ आजिर सफलता तो लेखक चाहते केवल आम ही सफलता आमर कष्ट ही सफलता आसेनी पूर्व समय मध्य जो लोक मैंने जी कष्ट करते सेमानंकर मिश्रण फल सम लिखाई सम ऑफ ऑल यानी कि पुरातन समय मध्य जो आफ्रिकान देशभक्त गुड़िक आफ्रिकान पैट्रियट माने जो प्रचेषा करते जो कष्ट सही से समस्त कष्टर परिणाम से समस्त त्याग से समस्त बलिदान परिणाम स्वरूप आज कौन करे आमर इंडिपेंडेंस आमर स्वाधीनता लाभ करिचे क्लियर होची लेखक कौन कहिया चाहूँगी लेखक चाहते केवल आम ही आज स्वाधीनता पलि आसनी पुरातन समय जो
ମହାନୁଭବୀ କ'ଣ ନା ଦେଶଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ପ୍ରଯତ୍ନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ସହିଥିଲେ, ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଝେଲିଥିଲେ ସେମାନେ, ସେ କଷ୍ଟର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ, ଫଳାଫଳ ସ୍ୱରୂପ, ସେ କଷ୍ଟର ମିଶାଣ ଫଳ ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ସେ ସବୁଦିନର ମିଶାଣ ଫଳ ହେଉଛି ଆଜିର ସ୍ୱାଧୀନତାର ଦିନ। କ୍ଲିୟର ହେଲା? ଦେଖ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ହେଡ୍ ଗନ୍ ବିଫୋର୍ ମି, ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପୂର୍ବରୁ ଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଦେଶଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଦିନଗୁଡ଼ିକର ମିଶ୍ରଣ ଫଳ ଆଜି। that long and noble line ended and now began again with me। ତ ସେ ଯେଉଁ ପୁରାତନ ସମୟରେ ସେ ଯେଉଁ ନୋବେଲ यानी ମହାନ, ମନେ ରଖ that long and noble line, that long and noble line यानी कि से जो पुरातन समय जो कौन ना सुंदर लाइन थिला, जो दीर्घ श्रृंखलटी थिला, ताहा कौन होता ना एंडेड एंड ना सरी जाइथिला, सेटा जोड़ा छिन्न हो जाइथिला जो सुंदर श्रृंखलटी। हाँ आमर कौन त्याग बलिदान जो सुंदर श्रृंखलटी थिला ता छिड़ी जाइथिला, बट नाउ बिगन अगेन विथ मी, किंतु ताहा मो सह आज पुनश्च स्टार्ट होइछि। आई वाज पेन्ड दैट आई वाज नॉट एबल to thank them and that they were not able to see what their sacrifice had wrought। wrought अर्थ पिले gain, मन रख wrought अर्थ gain, GAIN gain यानी सफलता हासिल करिबा, बुझा पड़ुछि gain। तुमर बही रे आंसर लिखि जे डन और अचीव्ड, डन और अचीव्ड। क्लियर होला? तो देख ये कहते जे आई वाज पेन्ड, मत कष्ट बोध होची, पेन कष्ट सहीबा। हाँ आई वाज पेन्ड दैट आई वाज नॉट एबल टू थैंक देम। तो लेख गोटे नेल्सन मांडेला कहते जे मत बहुत कष्ट लगुची जे मु तांको एटा धन्यवाद देई पारु नाही, एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी व्हाट देयर सैक्रिफाइस हैड रॉट। तो आउ सेमाने मध्य कौन वर्तमान देखा सक्षम नुहति जे सेमानकर जो त्याग, जो बलिदान आज कौन फलाफल बा कौन आमको लाभ करैछि। यानी कि वर्तमान से कौन सशरीर नहांती, से वर्तमान मृत। तो लेखक कहते मु तांको धन्यवाद दे पारुनी, तो यहाँ मोर दुख, मोर कष्ट, आउ से एटा देखा नहांती जे आजिर सफलता, से त्याग, से बलिदान कौन सफलता आनी देखा नहांती। क्लियर है? देख नेक्स्ट जीवा। सॉरी देख द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माय कंट्री। तो कौन है लेखक कहते द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड यानी कि आम वर्ण विद्वेष जो नीति, पॉलिसी यानी नीति, मन रख। तो वर्ण विद्वेष वर्ण वैषम्य नीति क्रिएटेड डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माय कंट्री एंड माय पीपल। तो लेखक कहते कौन ना जो अपार्थाइड पॉलिसी अच्छी, यानी जो आम कौन ना कह आम अपार्थाइड पॉलिसी अर्थ वर्ण वैषम्य वर्ण विद्वेष नीति। हाँ क्रिएटेड सृष्टि करथिला, कौन सृष्टि करथिला ए डीप एंड लास्टिंग वुंड। वुंड अर्थ बोले क्षत, वुंड अर्थ क्षत। अर्थ गुड़िक बारंबार कहूँ लेखि दौथ, हाँ तो जानिया सहज। तो लेखक कहते कौन ना पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड यानी कि आमर जो वर्ण वैषम्य नीति कौन करछि ना इन माय कंट्री, मो देश रे, एंड माय पीपल, मो लोक मानक भितरे कौन करछि गोटे डीप एंड लास्टिंग, गोटे गभीरतम एवं दीर्घस्थायी। लास्टिंग अर्थ दीर्घस्थायी, डीप अर्थ गभीर है। तो डीप एंड लास्टिंग गोटे वुंड सृष्टि कर, गोटे क्षतस्थान सृष्टि करिछि। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी इयर्स if not generations recovering from that profound hurt। profound अर्थ पिले तुम ये अर्थ रे देछि deep and strong, गभीरतम, hurt अर्थ आघात। क्लियर है? बुझा पड़ी? profound hurt अर्थ होछि गभीरतम आघात। सॉरी profound hurt अर्थ गभीरतम आघात, गभीरतम आघात। तो लेखक कहते कौन ना
अर्थ लिखिदियो। तो लेखक कहते कौन ना ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी इयर्स। देखो बोले विल लगी माने भविष्य कथा कहते। तो लेखक कहते जद्यपि टुडे वी गेट आवर इंडिपेंडेंस, जदि आम आज आम आम सक्सेस यानी आम स्वाधीनता इंडिपेंडेंस पाईगले, तथापि लेखक कहते ये जो अपार्थाइड जो डीप होल्ड आम भितर सृष्टि जो डीप वुंड आम भितर सृष्टि सेटा कौन ना ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी इयर्स, आम आहरी अनेक गुड़ी अनेक वर्ष ताको बोध करवा माने मन रखा से जो माने कौन ना अपार्थाइड यानी आम जो वर्ण वैषम्य नीतिटा जो क्षत आम मन सृष्टि करछि सही क्षत बोधे भरी होगापाई आम कौन आहरी अनेक वर्ष लगे जीव इफ नॉट जेनेरेशंस। हाँ पीढ़ी पर्यंत न हो पारे यानी कि आमे आउ किछि वर्ष एटा को टिके आम भितर ए क्षतटा भरी होगापाई किछि वर्ष लगी पारे किंतु पीढ़ी लागबनी यानी कि आमर संतान माने आउ अपार्थाइड यानी वर्ण वैषम्य भोग करेंगे नहीं। रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, रिकवरिंग अर्थ भल होगा मन रिकवरिंग अर्थ भल होगा। तो से जो गोटे कौन गभीर क्षत सृष्टि होती से क्षत आम आहरी केते वर्ष पर्यंत किछि वर्ष जाए आम ताकू मन रखा भोग करवा किंतु जेनेरेशन जाए जीव ना यानी कि आमर परवर्ती सृष्टि नेक्स्ट जेनेरेशन आउ भोग करेंगे नहीं। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रुटालिटी, तो पे ऑपरेशन अर्थ पीड़न बा शोषण, ऑपरेशन अर्थ पीड़ा है उत्पीड़न पीड़न आउ ब्रुटालिटी अर्थ नृशंस मन रख ब्रुटालिटी अर्थ नृशंस नृशंस आम कहने गोटे नृशंस भाई आचरण कला यानी अमानवीय आचरण क्लियर होची अमानवीय आचरण। तो लेखक कहते बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रुटालिटी, तो पीड़ार नृशंसतार जो दशंधि चली बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रुटालिटी यानी उत्पीड़न एवं नृशंसतार जो दशंधि चली क्लियर होची बुझा पड़ुची। हैड एनादर अनइंटेंडेड इफेक्ट, अनइंटेंडेड अर्थ अनुदिष्ट माने न चाहूथिबा बुझिला ना नहीं ना चाहते होगे ये अर्थ बुझेब। तो अनइंटेंडेड यानी अनुदिष्ट किछि उद्दिष्ट नुह बुझिला ना नहीं किछि उद्देश्य सेमती नुह। तो लेखक कहते कौन ना बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रुटालिटी, तो ये जो अत्याचार करागला जो ऑपरेशन करागला जो ब्रुटालिटी जो नृशंसता आचरण करागला ता द्वारा कौन गोटे अनइंटेंडेड इफेक्ट पड़ला। कौन अनइंटेंडेड इफेक्ट पड़ला यानी कि कौन अनुदिष्ट गोटे प्रभाव पड़ला कि प्रभाव पड़ला देखो कहउछंती एंड दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस्ड द ओलिवर थम्बस द वाल्टर सिसुलस द चीफ लिथुलिस the Yusuf Dados, the Bram Features, the Robert Sobokaevs of our time। तो कौन हला लेखक कहउछंती ना ए जो पीड़न एवं नृशंसता कारणरू कौन हला ना तार गोटे अनइंटेंडेड अनुदिष्ट गोटे प्रभाव पड़ला समाज उपरे आउ कौन हला एंड दैट इट प्रोड्यूस्ड आउ से जो समय से जो नृशंसता से जो उत्पीड़न समय कौन कला ना किछि जन को सृष्टि कला इट प्रोड्यूस कौन प्रोड्यूस कला कौन जात कला द ओलिवर थम्बोस से कौन करछि ना ओलिवर थम्बोस को हाँ वाल्टर सिसुलस हाँ चीफ लिथुलिस यूसुफ डाडोस ब्राम फीचर्स एंड रॉबर्ट सोबुकेव्स को जन्म करथिला जात करथिला। तो बोले देख दीज आर द नेम्स से देख तले तुम देती एम पे होती से माने जो कौन महत्वाकांक्षा गण देख यहाँ किए होती ओलिवर थाम्बो देखिपार वाल्टर सिसुलु आके होती चीफ लिथुली यहाँ के यूसुफ डाडोस ब्राम फीचर्स आके होती रॉबर्ट सोबुकेव क्लियर है बुझा पड़ुचे देखिए फिगर गुड़िक
देन देखो पिले से तले लिखी ये दीज आर सम प्रोमिनेंट नेम्स मुझे जूम कर दूची देखो दीज आर सम प्रोमिनेंट नेम्स इन द स्ट्रगल एगेंस्ट अपार्थाइड देखि पारलो यानी कि एमाने होचंदी सही व्यक्तित्व गण जो माने कौन करथिले ना स्ट्रगल एगेंस्ट रे काम करथिले क्लियर होला फॉर द यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल विथ प्रॉपर नाउन्स सी द छाड़ पिले तो देखो पिले एडी से कौन करछि ना हमर बही रे कौन करछि बुझे दउछि बही रे कौन लिखा देखो देख बही रे पिले ये सब जगह द लिखी आनছে देखुछन एटे द ऑलिवर द वाल्टर द चीफ द द तो बोले ये कौन देख बोले खाली नाटा लिखिले सेटा केवल से लोकटा हूँ बुझाऊँ जमी आम कह सचिन तेंदुलकर यानी कि केवल सचिन तेंदुलकर को ही बुझेला जब आम लिखिदे द सचिन तेंदुलकर तेज तार अर्थ कौन बुझेब ना सचिन तेंदुलकर भली समस्त क्रिकेटर बुझला ना सचिन तेंदुलकर भली जिते सब क्रिकेटर अच्छा आ अर्थ गुड़ा बुझेब क्लीयर हो तो ठीक से द ऑलिवर यानी कि ऑलिवर भली जिते सब थे हाँ द वाल्टर शिशु भली जिते सब थे क्लीयर हो बुझा पड़े तो कौन ना दिज मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पिला अर्थ कौन असाधारण मैंने कौन थे ना साधारण व्यक्ति नथिले माने सब असाधारण व्यक्ति थे बुझला ना नहीं हमारे पाखे असाधारण क्वालिटीज थिला असाधारण बुझला ना नहीं तो मेरे कौन ना असाधारण क्वालिटीज थिला तो मैन सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज उत्साह विजडम ज्ञान एंड जेनरसिटी दैट दे लाइक मे नेवर बी नोन अगेन बुझला ना नहीं तो इन पाखे कौन थी ए प्रकार लोक पाखे कौन थी ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असाधारण करेज थी करेज अर्थ कौन वेरी गुड सॉरी करेज अर्थ कौन उत्साह करेज अर्थ कौन उत्साह आम जो एनकरेज बोली कहूँ बेले बेले एनकरेज उत्साह है विजडम अर्थ कौन विजडम अर्थ मन ज्ञान विजडम यानी ज्ञान क्लियर आ जेनरसिटी अर्थ मन रख जेनरसिटी अर्थ उदारता 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 क्लियर है तो लेखक कहते कौन ना ए जो व्यक्तित्व मैंने थे किए किए ना ओलिवर थाम्बो वाल्टर सिसुलो चीफ लिथुली यूसुफ डाडो ब्राउन फीचर रॉबर्ट तो एम सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन्स थे असाधारण व्यक्तित्व थे असाधारण व्यक्तित्व माने बुझला ना नहीं तो एम पाखे कौन ना करेज थी विजडम थी उत्साह थी हाँ कौन से कार्य करने ज्ञान थी जेनरसिटी थे उदारता थे एम पाखे बुझला ना नहीं दैट दे लाइक मे नेवर बी नोन अगेन तो लेखक कहते बोधे यांक भली लोक आगु को बोधे आसबेनि एमाने जो कहते सिंगल वन पीस एमाने सिंगल पीस एमाने बोधे आगु को आसबेनि बोधे बुझला ना नहीं ये जो लोक गुड़िक व्यक्तित्व गुड़िक बोधे आगु को किए लोक मैंने आगु देखिपारे बोधे सिंगल वन पीसेस बुझला ना नहीं तो बोले उत्तम देख बोले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आम आगु देखा तो ये देखो देखिए परहैप्स बोध हुए इट रिक्वायर्स सच ए डेप्थ ऑफ ऑपरेशन बोले एटा ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाईएस्ट ऑफ कैरेक्टर एटा पिले हमर गोटे फेमस क्योट मन रख गोटे सूक्ति हमर नेल्सन मांडेला गोटे सूक्ति फेमस कोट एटा गोटे कोटेशन एटा गोटे बुझला ना नहीं कहते परहैप्स इट रिक्वायर्स सच ए डेप्थ ऑफ डेप्थ माने गभीरता गभीर बुझला ना नहीं तो सच ए डेप्थ ऑफ ऑपरेशन अर्थ मैं कही पीड़ा बा उत्पीड़न टू क्रिएट सृष्टि करवा सच हाईएस्ट ऑफ कैरेक्टर
तो लेखक कहते कौन ना बोध हुए प्रेस अर्थ बोध हुए ए जो पीड़ार गभीरता बुझिल ना नहीं इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाईएस्ट ऑफ कैरेक्टर तो लेखक कहते कौन ना बोध हुए यही परी उत्तम उत्तम क्यारेक्टर गुड़ी को जन्म करने जन्म होगापाई बुझला ना नहीं उच्च उच्च धरणर हाईएस्ट यानी उच्च धरणर क्यारेक्टर्स चरित्र गुड़िक तो एते उत्तम चरित्र गुड़िक जन्म होगापाई सृष्टि होगापाई बोध हुए यहीपरी गभीर अत्याचार बेले बेले माँ को माटी माँ को सहक पड़ी था देख अति सुंदर उक्ति गोटे यहाँ लेखक लिखुंट जे एमती माने कौन ना उत्तम कौन क्यारेक्टर गुड़ी को चरित्र गुड़ी को यह प्रकार सुउच्च चरित्र गुणवान चरित्र गुड़ी को जन्म होगापाई गुणवान लोक गुड़ी को जन्म पाई बोधे माटी माँ को एमती बेले बेले कष्ट सहिया पड़ी था जो आम गोटे कथार अच्छी हाँ नो पेन नो गेन भल भाव जानी ना आम कथार गोटे नो पेन नो गेन नो पेन नो गेन आर अर्थ हूँ यहाँ गोटे आमर इंग्लीश गोटे कोटेशन हाँ ओडिया आम कहे कष्ट कले कृष्ण मिले कष्ट कले कृष्ण मिले बुझला ना नहीं तो नो पेन यानी जब कष्ट न करवा कष्ट न सहिबा अगर हम दर्द ना झेले तो फिर हमें कुछ भी नहीं मिलेगा नो गेन कुछ भी नहीं मिलेगा कष्ट सहिले ही आमको सफलता मिल पार यदि कष्ट न सहिबा तेबे कदापि आम किसी भी प्राप्त करें तुम्हें बेले बेले कष्ट सहिया पड़े आउ गोटे कथा हूँ कौन पिले ना कष्ट आमे सहिबा तो ता माने नुह जे बेले बेले प्रश्न उठे मनरे जे आमे कष्ट सहिबा तो कौन सफलता आमे लाभ करवा कि नहीं कष्ट आमे सहिले सफलता आमे ही लाभ करवा बोली सेमिति किछि भी माने रखुने केमिति ना बेले बेले कष्ट जड़े सहे कि तार सफलता आउ जने प्राप्त करे तार फलाफल आउ जने प्राप्त करे जमती देख आम गोटे सिंपल कथा कहवा आम बापा आवर पेरेंट्स आर बियर ए लॉट ऑफ पेन्स आवर पेरेंट्स बियर ए लॉट ऑफ पेन बट द रिजल्ट आमे खुशी रोचे बापा माँ आम बहुत कष्ट सहती तो कष्ट से सहिले सुखरे आमे रहिले बुझिला ना नहीं तो आमको सुखरे रखिबा पाई सेमानंको कष्ट सहक बाध्य सेमाने कष्ट रहिले ही आमे सुख रही परिबा जे सेमाने सुख रहिबे ते आमे कष्ट रहिबा सेकंड उदाहरण नहीं परिबा नेचर रे प्ले प्रकृति मध्य रे लॉट ऑफ एग्जांपल्स आर प्रेजेंट जमी देखो आमे कहि परिबा एबे गोटे गच्छ गच्छ कौन करे ना गोटे गच्छ से कौन करछि ना हमर ये रही थाउछि हाँ हमर गोटे बर गछ चिंता करवा हाँ गोटे बर गछ कौन करे ना सी आमर रास्ता कड़े थाए बुझिला ना नहीं तो से कौन करे सब बाटोई मान को सहायता दिए बुझिला ना नहीं सूर्य किरण रू से समस्त रक्षा करे किंतु जे चिंता करवा गछड़ा कौन खरारे ठिया होता गछड़ा खरारे ठिया होइछि बोली आमे छाई बस्ता होचे तले बुझिला ना नहीं गछड़ा खरारे ठिया होइछि बोली आमे तले छाई रे बसी पाउछे जोदिन गछ छाई खोजिब से दिन सब बाटोई खरा को पड़ेबे तो कष्ट किए सहिला गछ सहिला सुख किए पाइला आमे पाइले तो सेमिति किछि भी ग्यारंटी नहीं किछि भी मायने नहीं जे जे कष्ट सहिला फल सी ही लाभ करिवो बेले बेले सी लाभ करे बेले बेले अन्य मान लाभ करिथांती एबे देखो आउट उदाहरण नहीं परिबा फलंती गछ आंब गछरे आंब फळिला तो पिला माने कौन गले ताको ढेला आमर पथर एसबू मारले तो गछ को बाजिला केते आंब को बाजे केते गछ को बाजे हाँ तो गछ को बाजिला गछ को कष्ट होला गछ तो कष्ट सहिला पथर ढेला माड़र कष्ट गछ सहिला कि आंब झड़ी पड़ुची किए खाऊची पिला माने खाइले तो कष्ट जड़े सहिला बड़ सुफल अन्य जड़े भोग कले
तो लेखक कहते तो बेले बेले एमती गोटे उत्तम क्यारेक्टर जन्म होगापी उत्तम क्यारेक्टर जन्म होगापी कष्ट सहू पड़ो विदाउट पेन नो गेन जदि पेन किसी ना कष्ट किसी ना तेज आम कदापि सफलता लाभ कर तो जदि आम पाखे गोटे आम यदि सफलता लाभ करार अच्छी आमको कष्ट सहवाक पड़ो दुनिया लोक मैंने कहते जे हाँ मु समस्त सहायता करुच्ची लोक मैंने शेष में मोर ही निंदा करती मत ही लोक मैंने इयाड़ सियाड़ कथा कहते मत ही लोक मैंने खराब कथा कहते अरे कहे कहे क्योंकि क्रांतिकारी लोगों के ऊपर ही ताना कोसा जा सकता है क्रांतिकारी लोगों के ऊपर ही ताना कोसा जा सकता है भारत स्वाधीनता संग्राम समय रे इंग्रेज माने छोट छोट लोक गाली कर गांधीजी गाली करते नेहरू गाली करते बोस गाली करते कारण से क्रांतिकारी लोक थे जो मैंने क्रांतिकारी लोक से ताना कोसा जीव से गाली शुणे एका आउ गोटे उदाहरण मुझे आपको कहबी जे एक्चुअली आमे को गछ को ढेला मारुचे को गछ को पथर मारुचे जो गछरे फल अच्छे यानी कि फलंती गछ ही ढेला माड़ सहिब जो जाए तार फल उठिनी जो 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 जाए से गचर फल आसनी से जाए किए पचारि भी जीविनी यानी कि अगर तुम दूसरों की मदद करोगे तो तुम्हें कुछ सुनना पड़ेगा इसका मतलब ये नहीं कि लोग बोलते हैं ये सुनकर हमें दूसरों की मदद करना बंद कर दे पत्थर की दर्द सहना पड़ता है इसके लिए कभी पेड़ फल उगाना बंद नहीं करता वो फल बार बार उगाता है और बार बार पत्थर की मार सहता रहता है और उसकी जो फल वो हम भोग करते हैं वो नहीं सैक्रिफाइस दैट्स कॉल्ड सैक्रिफाइस त्याग बलिदान इसे कहते हैं खुद दर्द सहो लेकिन दूसरों की मदद करो यार हमारी भारत के आदर्श भारत की जो परंपरा है जो भारत की दिव्य आदर्श है वेद की आदर्श है ये तो वही है हमारे भारत की जो वेद की आदर्श है भारतीय जो आदर्श है वो आदर्श यही है कि नाजायज तुम अपने दर्द सहो दूसरों की दर्द सहो लेकिन हमेशा दूसरों की भला करो खुद दर्द सहो लेकिन दूसरों की भला करो क्योंकि हमारे जो प्रकृति है हमारे चारों तरफ जो हमारे प्रकृति है हमारा जो नेचर है याद रखो वो हमेशा खुद सहता खुद दर्द झेलता है और दूसरों की मदद करता है देखो हर एक प्रकृति के हर एक चीज खुद दर्द झेलता है और दूसरों की मदद करता है वो दर्द सहते हैं इसलिए हम खुशहाली से हमारी जिंदगी जीते देखो हर सुबह हर टाइम हर रोज हर सेकंड सूरज जलता रहता है आग से सूरज हमेशा आग से जलता रहता है वो जलता है इसीलिए ही हम लाइट आलोक रोशनी और हीट यानी कि ताप ऊष्मा पा सकते हैं अगर सूरज ना जलता तो फिर हम ना तो लाइट पा ना तो आलोक पा सकते ना तो प्रकाश पा सकते ना तो ताप पा ऊष्मा पा सकते तो सोचो अगर सूरज ना जलता तो फिर हमारा जो यह धरती है वो पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका होता क्योंकि हमें अच्छे तरह से मालूम है कि सूरज की दी हुई प्रकाश और ताप से ही हमारी पृथ्वी संतुलित है बैलेंस्ड है यानी कि एक दर्द झेलता है इसलिए दूसरा अच्छा रहता है तो कभी कभी ऐसा दर्द आता है आने पर ही हम कुछ बन सकते हैं यहाँ पे हमारे राइटर यही बोलना चाहते हैं कि perhaps it requires it's a best line perhaps it requires such depth of operation to create such a heist of character इस बात को समझने के लिए मैं और एक एग्जांपल देना चाहूंगा देखो एक फैमिली है एक परिवार है जिसमें एक बाप एक फादर एक मदर और उनके दो बच्चे हैं
दो बच्चे, दो बेटा है, हम बोलते हैं दो बेटा है। क्लियर? दो बेटे। जब तक बाप मौजूद होता है, जब तक बाप मौजूद होता है घर में, तब तक ये दोनों बच्चों को कोई भी तकलीफ नहीं आती, कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी दायित्व तो नहीं होता उनके ऊपर। यानी कि उनकी मानना यही है कि पापा है ना, वो सब संभाल लेंगे, सब संभाल लेंगे, हमें कुछ टेंशन ही नहीं है, हम बिंदास में जिए। लेकिन लेकिन अगर अगर बाप गुजर गए तो, अगर बाप गुजर गए तभी क्या होगा? माँ अकेली होगी, अभी माँ अकेली होगी। तो अब इन दोनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनका दायित्व बढ़ जाता है। जैसे कि अगर बड़ा भाई पैसा कमाने के लिए कहीं बाहर चला गया, तो छोटा भाई माँ के पास रहना अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत जरूरी है। क्योंकि माँ थोड़ी ना अकेला रहेगा गांव में या माँ शहर में, अकेले माँ को नहीं छोड़ सकते वो दोनों। तो अगर एक पैसा कमाने के लिए बाहर चला गया, तो दूसरे को माँ के पास रहना मौजूद है, माँ के पास मौजूद रहना जरूरी है। तो यानी कि हम यह समझते हैं कि एक की भलाई के लिए दूसरी की बुराई होना अत्यंत जरूरी है। यानी कि इन दोनों को रेस्पॉन्सिबिलिटी देने के लिए, इन दोनों को दायित्ववान करने के लिए बाप का मरना जरूरी है, यानी बाप का दूर जाना जरूरी है। ठीक वैसे ही हमारे मिट्टी माँ अगर एक हाईएस्ट पर्सन, एक हाईएस्ट कैरेक्टर को पाना चाहता है, तो उसके लिए उसको भी कुछ दर्द झेलना पड़ता है। या अगर हम बोले तो लाखों करोड़ों ऐसे एग्जाम्पल्स है हमारा सामने। जैसे कि और एक एग्जाम्पल आपको दे सकता हूं कि हमारे बच्चों की पढ़ाई देखिए, पढ़ाई में वो चाहते हैं सफलता प्राप्त करने के लिए, सक्सेस पाने के लिए, यानी कि उनको क्लास में टप्पर होना है, उनको क्लास में टप्पर होना है। तो टप्पर थोड़ी ना ऐसे आसानी से मिल जाता है, नहीं ना। टप्पर होने के लिए उनको रात दिन झेलना पड़ता है किताबों के साथ। और मैं एक बात बता दूं कि छात्र के जीवन में छात्र के जीवन में सबसे कठिनाई काम है पढ़ना, जो उनकी ड्यूटी है। देखो, सच्ची बात है, आप मानो या ना मानो, आप मानो या ना मानो, लेकिन सच्ची बात यही है कि छात्र की जीवन, एक स्टूडेंट लाइफ में सबसे कठिनाई काम, सबसे हार्ड वर्क है किताब लेकर बैठना, पढ़ाई करना, सबसे हार्ड वर्क यही है। और उन भगवान की दुआ है, भगवान की आशीर्वाद है कि वही पढ़ाई उनकी ड्यूटी है। कमाल है, देखो, उनकी ड्यूटी है पढ़ाई, और वही ड्यूटी उनको ज्यादा तकलीफ देती है। समझ में आया? क्लियर हो रहा है? हाँ। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि अगर हम बात क्लियर कर देता हूँ, अगर हम दर्द ना सहे तो सफलता प्राप्त करने के लिए, यानी टप्पर बनने के लिए आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। टप्पर बनने के लिए आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। अगर आप कष्ट ना झेले, अगर आप पढ़ाई ना करेंगे, अगर बोरिंग लगेगा, हमें भी पता है बोरिंग लगेगा, पढ़ाई करना बोरिंग लगेगा, फिर भी आपको पढ़ाई करना है क्योंकि आप टप्पर पाने को चाहते हैं। अगर आपका वैसे कोई एम नहीं है तो फिर ठीक है। अगर आप मजदूर बनना चाहते, कोई आवश्यक नहीं है किताब पढ़ना, कबाड़ी वाले को बेच दीजिए किताब। समझ में आ रहा है? हाँ हाँ, नहीं ऐसा नहीं करना। हर एक छात्र, हर एक स्टूडेंट टप्पर बनने की कोशिश करना, टप्पर बनने की कोशिश करना, जो हो अभी उससे कुछ आगे जाने की कोशिश करना। आज जो कुछ भी हो, कल तुम कुछ अच्छे बनने की कोशिश करना। अगर कोई तीन हमारे स्टेप में है, तो वो जरूर चेष्टा, मैंने प्रयास करना चाहिए कि वो चौथा स्टेप पर कैसे पहुंचे। जो चौथा में है वो ट्राई करेगा कैसे पांचवा में पहुंचेगा। तो उसके लिए हमें मेहनत करना जरूरी है। तो कुछ भी प्राप्त करने के लिए हमें मेहनत करना जरूरी है। क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूं? वेरी गुड। तो ये एक अच्छा कोटेशन है,
राइटर की कि पैरासिट रिक्वायर्ड सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। तो ऐसे अच्छे कैरेक्टर, अच्छे लोग पैदा होने के लिए मिट्टी माँ को कुछ तकलीफ झेलना पड़ता है। मैंने बहुत सी हिंदी बोल ली, अभी उड़िया में एंट्री करता हूँ। मेरी मातृभाषा है उड़िया, उड़िया में एंट्री करते हैं। देखो, माई कंट्री इज रिच इन मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इन इट्स सॉइल। तो लेखक कहते माई कंट्री इज रिच इन मिनरल्स। तो लेखक कहते मो देश दक्षिण आफ्रिका कौन है ना, दक्षिण आफ्रिकार अनेक गुड़िए मिनरल्स अच्छी, यानी अनेक गुड़िए खनिज पदार्थ अच्छी। एंड जेम्स, जेम्स रत्न, मन रख, जेम्स अर्थ रत्न, डायमंड्स दीज आर द जेम्स, रत्न, बुझिला ना नहीं। तो राइटर कहते जे मो कंट्री रे अनेक गुड़िए खनिज संपद अच्छी, अनेक गुड़िए जेम्स अच्छी। इन द बीनीथ ऑफ लाइफ, बीनीथ द इट्स सॉइल, बीनीथ यानी पिले तले, बीनीथ अर्थ तले, माटी तले, इन द सॉइल, बीनीथ ऑफ द सॉइल यानी माटी तले। तो माटी तले बहुत गुड़िए जेम्स अच्छी, मिनरल्स अच्छी। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेट वेल्थ इज इट्स पीपुल। आउ किंतु, किंतु बट, किंतु आई ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ, ग्रेटेस्ट वेल्थ मीन्स सबुठु बड़ संपत्ति। ग्रेटेस्ट वेल्थ अर्थ, वेल्थ अर्थ हो वेल्थ अर्थ हो संपत्ति, मन रख। तो लेखक कहते किंतु मु सब भावे कौन ना मो देशर सब बड़ संपत्ति किए, इट्स ए पीपुल, ता लोक माने, फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड। जो माने कौन ना प्योर डायमंड रु, डायमंड अर्थ कौन सुना, डायमंड अर्थ कौन सुना, वेरी गुड। डायमंड अर्थ हीरा हला, सुना नहीं, सुना अर्थ गोल्ड। हो तो प्योर डायमंड, तो पूरा प्योर हीरा ठू मध्य मु लोक माने फाइनर भल एवं ट्रूअर सच्चा। क्लियर है, क्लियर होची। हाँ आगो जीवा। देख, इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्नड द मीनिंग ऑफ करेज। तो लेखक कहते कौन, इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स, कॉमरेड्स अर्थ साथी, मन रख, कॉमरेड अर्थ साथी। आमर गोटे विजय आमर ये अच्छा तेलुगु गोटे एक्टर अच्छा विजय देवरकोंडा, तांकर गोटे फिल्म अच्छी डियर कॉमरेड, जानथिबो। तो कॉमरेड मीनिंग मुझे जान नी, कॉमरेड अर्थ होची साथी। क्लियर, डियर कॉमरेड, तांकर गोटे फिल्म अच्छी डियर कॉमरेड बोली। तो कॉमरेड्स अर्थ साथी। तो इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स, लेखक कहते यही सब, इट इज ଏହା ହେଉଛି ସେହି କମରେଡ୍ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ, यानी ସେହି ସାଥୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ, इन द स्ट्रगल युद्ध क्षेत्र रे, दैट आई लर्नड इन द मीनिंग ऑफ करेज। तो एमाने होचंती, तो कोमाने एमाने अर्थ जो आमर 20 नंबर पेज बही रे देछि, जो चित्र गुड़िक फोटो गुड़िक जो ना गुड़े देछि, ऑलिवर थाम्बो, वाल्टर शिशुलो, चीफ, ए सब बुझिला नहीं। तो लेखक कहते तो युद्ध क्षेत्र रे, युद्ध रे ये जो आमर अपार्थाइड पे वर्ण वैषम्य युद्ध करा जायतिला, से युद्ध रे बुझिला ना नहीं। तो मु यही साथी मान ठारू ही शिखी कौन ना करेज रो मीनिंग कौन, उत्साह रो मीनिंग कौन, उत्साह माने कौन सर मुझे शिखी टाइम एंड अगेन। तो आगु को कौन होता ना आई हैव सीन मेन एंड वुमेन रिस्क, बुझिला ना नहीं। तो लेखक कहते तो टाइम एमती आसला, टाइम एंड अगेन, तो पुणी एमती समय आसला, आई हैव सीन मेन एंड वुमेन रिस्क। तो मुझे देखी कौन ना मेन एंड वुमेन, पुरुष एवं महिला माने कौन होते ना रिस्क रे फस जाते, माने संकट रे पड़ते, एंड गिव दे लाइफ्स फॉर एन आइडिया। और से जीवन कौन करथिला, तांकु गोटा प्रकार आइडिया, गोटे नूतन दर्शन जोगेइथिला। आई हैव सीन मेन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, बुझिला ना नहीं। तो कौन कहते ना आई हैव सीन मेन स्टैंड अप टू अटैक, बुझिला ना नहीं। तो मुझे देखी कौन होता जो वर्ण वैषम्य नीति विरुद्ध रे लोक माने, पुरुष माने ठिया होते, जागृत होते टू अटैक, अटैक करने, माने वर्ण वैषम्य नीति विरुद्ध रे कौन आवाज उठायापाई, एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, ब्रेकिंग यानी भांगी पड़ा। तो से माने न भांगी कौन ना अटैक आउ टॉर्चर रो मुकाबला करथिले, शोइंग ए स्ट्रेंथ एंड रेजिलेंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, बुझिला ना। रिलायंस अर्थ प्लेट देछि रेजिलेंस, रेजिलेंस अर्थ दूसरी द एबिलिटी टू डील विथ एनी काइंड ऑफ हार्डशिप एंड रिकवर फ्रॉम इट्स अफेक्ट, मतलब लड़ीबार क्षमता, अर्थ हम लड़ीबार क्षमता। लिखि दियो, अर्थ लिखि दियो, रेजिलेंस अर्थ लड़ीबार क्षमता। क्लियर है, देख
बार बार आ जाता है। देखो तो एंड रेजिलेंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, बुझिला ना नहीं। तो जो कि आमर आमे ताकू कल्पना मध्य डिफाइस डिफाइस अर्थ बोले अवज्ञा करवा, प्रत्याख्यान करवा, मना करवा, अवज्ञा करवा। तो अर्थ ये तो अवज्ञा बुझे ये बाहर बाहर। तो लेखक कहते जो आमर पुरुष महिला माने जो रिस्क रे पड़े से माने निजर जीवन को व्यवहार कर निजर आइडिया बाहर कले आउ कौन ना पुरुष माने ये जो अटैक आउ आमर टर्चर विरोध रे न भांगी पड़ी से कौन करते ना माने कौन आमर फाइटिंग करते शोइंग एंड स्ट्रेंथ एंड रेजिलेंस से कौन करते ना निजर शक्ति आउ लड़ीबार क्षमता को प्रदर्शन शोइंग करते द डिफाइज द इमेजिनेशन सेटा आमर कल्पना शक्ति इमेजिनेशन रो बाहर डिफाइज तो बाहर से आम इमेजिन मध्य कर परिबानी। आई लर्न दैट करेज वाज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। तो मु शिखिली आई लर्न मु शिक्षा कली दैट करेज वाज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। तो व्हाट इज करेज लेखक कहउचंती तो करेज कौन उत्साह कौन उत्साह अर्थ नुह जे एब्सेंस ऑफ फियर खाली डर नथिले डर नथिले उत्साह बोली कहजिबोनी कागु कहजिबो उत्साह बोली बट द ट्रायम्फ ओवर इट ट्रायम्फ अर्थ पिले विजय ट्रायम्फ अर्थ विजय मन रख ट्रायम्फ अर्थ विजय। तो कहउचंती खाली डर मनरे नथिले ताको आमे केबे कोन कहजिबो ना करेज बोली कहजिबोनी। तो आज नाही काली आस जाय पारे आज नाही काली आस जाय पारे पिलाने बहुत कहती मु कागु डरुनी देखिया तू आगे गोटे बाघटे छाड़देवी डरबुनु तू सडन डरी जीव। तो कह कथा है हाँ तू कुकुर को न डरी पारू बिले की न डरी पारू नुह बाघ को डरबुनु। तो लेखक कहते जे डर नथिबाटा को आम साहसिकता करेज बोली कहबानी डर नाही मनरे तो कहबानी जे पिलाटा साहसी बोली केतबेले साहसी बोली कहबा केतबेले करेज बोली कहबा बट द ट्रायम्फ ओवर इट जेतेबेले से डर उपरे विजय प्राप्त करिने जले डर को जीति जाए से कौन कौन कहबा करेज बोली कहबा। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कॉन्क्वेर्स द फियर। बोले कहउचंती जने ब्रेव मैन गोटे साहसी व्यक्ति काहो कहबा जा पाखरे माने डर नाही जे कि डर को फील अफ्रेड यानी डर अफ्रेड अर्थ डर। तो लेखक कहते जे साहसी मनुष्य ताकू कहबानी जे कौन डर को केबे फील करेनी साहसी मनुष्य ताकू कहबा जे डर को कनक्वेयर करिछि कनक्वेयर यानी आमे कौन लड़ाई करिछि जे डर सह लड़ाई करछि जे डर को सफलता डर उपरे विजय प्राप्त कर डर उपरे सफलता प्राप्त करिछि ताकू कहबा कौन गोटे ब्रेव मैन बोली कहबा। तो तुम माने केमि ब्रेव मैन हबो डर उपरे सफलता प्राप्त करी कौन से पाठ देखुच इंग्लीश मोर होनी मोर हबनी यदि एमती कहबा तेबे हमें केबेले ब्रेव मैन हो पारिबनी बुझिला ना नहीं। तो से जो डर को मारिबा को पड़िबो आज बीजा तो इंग्लीश पाठ भल लगुनि तो बारंबार बसिकी पढ़िया पड़ो तो आज बीजा लगे काली बीजा लगे पहरदिन बीजा लगे किंतु दिन ना दिन आमको कौन से इंग्लीश बहीटा ही भल लगे पढ़ाई जो भी पाठ जो भी तुम बीजा लगुच डर लगुच तो से पाठ को बारंबार 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 पढ़ बुझिला ना नहीं तेबे आम सफलता प्राप्त कर एंड वी बिकेम ब्रेव मैन बुझिला ना नहीं तुम सब ब्रेव मैन हम ना वेरी गुड। देख तो नो वन इज बोर्न हेटिंग another person because of the color of the skin or his background or his religion। देखो अति सुंदर कथा लेखक कहउचंती तो नो वन इज बोर्न हेटिंग another person because of the color of the skin his background or his religion। देखो अति सुंदर कथा लेखक कहउचंती जे नो वन इज बोर्न हेटिंग कौनस मध्य लोक कौनस मध्य गोटे व्यक्ति नो वन केबे मध्य जन्मरू ए घृणा भावटा हेटिंग हेड अर्थ घृणा बुझिला ना नहीं हेड अर्थ घृणा हेड अपोजिट कौन आसो हेड अपोजिट लव मन रख लव रोची घृणा हेड अर्थ घृणा लव अर्थ प्रेम तो ये मन रख अपोजिट वर्ड ये हेड लव। तो लेखक कहते कौन नो वन इज बोर्न हेटिंग एनदर पर्सन। तो लेखक कहते केबे मध्य कौनसी जन को जन्मरू
घृणा मनोभावटा ता भितर न थाउची मन रख जितेबाला गोटे पिलाटे जन्म होची ता भितर जीरो फीलिंग्स आउ जीरो इमोशंस थाए जीरो फीलिंग्स आउ जीरो इमोशंस थाए बुझिला ना नहीं जीरो ता पाखरे यानी कि किछि भी न थाए किछि भी न थाए ता पाखरे बुझिला ना नहीं ता पाखरे किछि भी फीलिंग्स किछि भी इमोशंस न थाए तुम कह सर एटा तो भूल कथा कहले आपण ता माँ प्रति फीलिंग्स नहीं तुम गोटे छोट पिला को जन्मित पिला को ता माँ ठू आणिकी तुम आउ गोटे स्त्री लोक दे दियो तो से छोट पिलाटे कौन भाव से लोक हूँ मोर माँ ये गोटे मो माँ नहीं तो कह ता भितर कौन से फीलिंग्स इमोशन न थाए आमे ता भितर धीरे 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 से समाज रहे धीरे 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 कौन होचे सब इमोशन सब फीलिंग्स प्रवेश करोचे तो लेखक कहते कौन सी व्यक्ति जन्म समय घृणा करवाटा शिखिकी धरी आसी न थाए घृणा करवाटा नहीं बिकज ऑफ इज कलर बिकज इज बैकग्राउंड और रिलीजन तो तार बैकग्राउंड कौन तार रिलीजन तार धर्म कौन हाँ कलर ऑफ द स्किन यानी तार देह रंग कौन एसबू के कौन गोटे लोक जन्म धरिक आस न थाए आमे ताकू शिक्षा दौचे जे सारा कलाडा सारा असुंदर हाँ तार बैकग्राउंड ठीक नहीं से गरीब पिला हाँ तार रिलीजन ठीक नहीं से गोटे न्यून जाति बुझिला ना नहीं सी एमती खराब जातिर पिला तो ताकू आम ये कर ठीक नुह तो आम भर घृणा भाव पैदा हो जन्म हो घृणा भाव बुझिला ना नहीं देख भी गोटे छोट कथा तुम कहि तुम फिल कर देख आम भितर ये जो रिलीजन वार्डटा भी ये जो रिलीजनटा आम भितर एमती प्रवेश कर सारा देख मुझे तुम्हें सांग हो हाँ तुम बहुत सांग अच्छा देख तुम सांग मान भितर सब ना जान सांग मानकर देख दी तीनटा सांगर तुम्हें केवल नाटा जो भाव तुम्हें बहुत खुशी लगे ना को भाविले बहुत खुशी लगे बुझला ना नहीं ना को खाली भाव नाटा खाली स्मरण कर बहुत खुशी लगे किंतु किंतु जदि टाइटल देखिदेव तुम टे तुम टे घृणा लगे ओबियसली आ मन रे पलि आस तुम सार एमती आसबनी आसब देख तो जी मनकर केवल ता नाड़ा देख हाँ तुम्हें बहुत भल लगे बढ़िया पिलाटा नाड़ा तार बढ़िया सुंदर कि टाइटल को दृष्टि पकेब तुम्हें घृणा लगे एमती टाइटल एमती जातिर सी तो ये जो मनोभाव आम भर आसला केमती यहाँ आमर जो मैंने वयोज्येष्ठ आमर जो समाज अच्छी बारंबार ये कथा कही 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 कौन ना आमको से मेंटालिटी करदेला से मेंटालिटी करदेला बेले बेले आमको एमती लगे कौन ना आमर गोटे सांगर नाटा हाँ बहुत उच्च बहुत सुंदर बहुत उच्च अच्छी बट टाइटलटा बहुत निम्न रे अच्छी आमको एमती लगे जहाँफल आम मन गोटे घृणा भाव पलि आसे जो टिके निम्न जातिर पिला रिलीजन पिलाई आम तो कौन करे घरे मानुने हाँ तो दांडे तू बाहर ठिया पदारे ठिया था मुझे घर को नौने तो यही प्रकार मेंटालिटी पलि आसला आमर तो घृणा लेखक कहते घृणा करवाटा आम जन्म शिखि न था पीपुल मस्ट लर्न टू हेट पीपुल मस्ट लर्न टू हेट तो घृणा करवाटा लोके आमको शिखई था लर्न कर शिखई था जे घृणा कर सी एमती पिलाटा से सेमती पिलाटा सी एमती ये एमती तो आम मन गोटे घृणा भाव पैदा हुए जन्म हुए तो लोके आमको घृणा करवा शिखई था एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट लेख सुंदर लेख कहते एंड इफ जदि दे कैन लर्न टू हेट जदि से माने आमको घृणा करवा शिखई पारती दे कैन बी टॉट टू लव फॉर लव कम्स मोर नेचुराली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट तो लेख कहते जदि लोक मैंने आमको घृणा कर शिखई पारती तेबे आमको भल पाइबा भी शिखई पारे आमको भल पाइबा भी शिखी पारे ओबियसली इट्स राइट क्लीयर हो जदि लोक मैंने घृणा कर शिखुं से पिलाटा इमितिटा से पिलाटा सेमितिटा हाँ
ଯଦି ଶିଖେଇ ପାରୁଛନ୍ତି ଏ ପିଲାଟା ଗନ୍ଧିଆଟା ହଁ ଯଦି ଶିଖେଇ ପାରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏଇଟା ବି ଶିଖେଇ ପାରିବେ ନା ଦେ କ୍ୟାନ୍ ଟଟ୍ ଟୁ ଲଭ୍ ତ ଭଲ ପାଇବାଟା ବି ଶିଖେଇ ପାରିବେ। କିଏ ରୋଗୀ ଯଦି ହେଲା ଦେଖ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ଯଦି ଗୋଟେ ରୋଗୀଟେ ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ଘର ଜଣେ ବାପାଙ୍କୁ ଖାସ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ସେବା କରିବାଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଘର ଲୋକ କହିଲେ ହେ କାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ ତତେ ରୋଗ ବ୍ୟାପିବ ହଁ ତୁ ଯା ନା ଇଆଡ଼େ ଆସେ ତ କ'ଣ କଲେ ତୁମକୁ ଘରକୁ ଡକେଇଦେଲେ ତା ଅର୍ଥ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ ଏଇଠି ଯେ ତାଙ୍କୁ ରୋଗ ହେଇଛି ସେ ଘୃଣାର ଯୋଗ୍ୟ ତମକୁ ଯିବାନି ଏଇଟା ଆମେ ଶିଖିଲେ ରାଇଟ୍। ତ ଚିନ୍ତା କର ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ 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 ଯେଉଁ ବାପା ମା ମାନେ ବା ଯେଉଁ ପରିବାର ପିଲାଙ୍କୁ ଏ କଥା ଶିଖେଇଲେ ଯେଉଁ ରୋଗୀ ପାଖକୁ ଯାଅନି ରୋଗୀ ଦେହରେ ରୋଗ ଅଛି ଆଉ ତାହା ତୁମକୁ ବ୍ୟାପିବ ରୋଗୀର ସେବା କର ନାହିଁ ରୋଗୀକୁ ଘୃଣା କର ଏଇଟା ହିଁ ଶିଖେଇଲେ ନା। ତ ଦିନେ ଚିନ୍ତା କର ସେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଯେତେବେଳେ ରୋଗୀ ହେଇଯିବେ ହେଲେ ସେ ବାପା ମା ରୋଗରେ ପଡ଼ିବେ ତେବେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଫସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗସ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ତାଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ଯିବେନି ବିକଜ ଏ ମାନେ ମନା କରିଥିଲେ ସେଦିନ ଯେ ତୁ ରୋଗୀ ପାଖକୁ ଯାଆନା ରୋଗୀ ପାଖକୁ ଗଲେ ତୁ ରୋଗ ଡେଇଁବ ଆଜି ତମେମାନେ କ'ଣ ଅଛ ରୋଗୀ ଅଛ ଯଦି ତମ ପିଲାମାନେ ଆସିବେ ତାଙ୍କ ବୋଧେ ରୋଗ ହେଇଯିବ ସେମାନେ କହିବେ ନାଇଁ 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 ଆମେ ଯିବୁନୁ ତାକୁ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଯାଅ ହଁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଥୋଇ ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସ ସେ ଡକ୍ଟର ତାକୁ ସେବା କରିବ ଆମେ କରିପାରିବାନି ଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ତେଣୁକରି ଯଦି ଆମେ ଘୃଣା କରିବାର ଶିଖେଇ ପାରୁଛେ ଆମ ପାଖରେ ଭଲ ପାଇବାଟା ବି ଶିଖେଇ ପାରିବା ଆମେ କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ପାଖରେ ଦୁଇଟା କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି ଗୋଟେ ଭଲ ଗୋଟେ ଖରାପ ଯଦି ଆମେ ଖରାପଟା ଶିଖେଇ ପାରୁଛେ ତ ଭଲ ବି ଶିଖେଇ ପାରିବା ନା କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କେବଳ ଖରାପଟା ହିଁ ଶିଖୁଛେ ଭଲଟା ଶିଖୁନେ ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଯଦି ଖରାପ ହେଉଛେ ଲୋକମାନେ ଆମ ସେ ବର୍ତ୍ତାପ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି କ୍ଲିଅର ହେଉଛି ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ସବୁବେଳେ ଭଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଭଲ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି। ଦେଖ ଆଗକୁ ଯିବା ତ ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦେ କ୍ୟାନ୍ ଟଟ୍ ଟୁ ଲଭ୍ ଯେଉଁମାନେ ଘୃଣା କରିବାକୁ ଶିଖେଇ ପାରନ୍ତି ସେମାନେ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଶିଖେଇ ପାରିବେ ଫର୍ ଲଭ୍ କମ୍ସ ମୋର୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଟୁ ଦ ହ୍ୟୁମାନ୍ ହାର୍ଟ ଦେନ୍ ଇଟ୍ସ ଅପୋଜିଟ୍। ଦେଖ ତ ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର କଥାଟି ତ ଫର୍ ଲଭ୍ ପ୍ରେମଟା କମ୍ସ ମୋର୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଟୁ ଦ ହ୍ୟୁମାନ୍ ହାର୍ଟ ଦେନ୍ ଇଟ୍ସ ଅପୋଜିଟ୍ ବୁଝିଲା ନା ନାଇଁ। ତ ଆମେ କ'ଣ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରେମଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲି ମାନେ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଏଠି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଅର୍ଥ ହେବ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବେ ତ ଏଠି ପ୍ରେମଟା ଆମ ହୃଦୟକୁ କ'ଣ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବେ ପଳେଇ ଆସୁଛି ଆପେ ଆପେ ପଳେଇ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ କ'ଣ ନା ହ୍ୟୁମାନ୍ ହାର୍ଟ ହୃଦୟକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି ଦେନ୍ ଇଟ୍ସ ଅପୋଜିଟ୍ yani ଲଭ୍ର ଅପୋଜିଟ୍ କ'ଣ କହିଲି ତମେ କି ଲଭ୍ର ଅପୋଜିଟ୍ ହେଟ୍ ମନେ ରଖ ଘୃଣା। ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଘୃଣା ଅପେକ୍ଷା ଆମ ମନରେ ଭଲ ପାଇବାଟା ଜଲ୍ଦି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଉଛି। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ତମ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ତୁମେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ମିଶି ଆସିଲଣି ବୁଝିଲା ନା ନାଇଁ ତମର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟେ ମନେକର ତା ନାଁ ହେଉଛି ତୁଳସୀ ମନେକର ତମର ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛି ତା ନାଁ ହେଲା ତୁଳସୀ କ୍ଲିଅର ହେଉଛି ତୁଳସୀ ତ ତମେ ତମ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ପିଲାବେଳୁ ମିଶି ଆସିଲଣି ହଁ ମନେକର ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ତମେ 10th କ୍ଲାସ୍ରେ ତମେ ଗୋଟେ ତମ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ମିଶିଲ ବୁଝିଲା ନା ନାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ନାଁ ହେଉଛି ମନେକର କ'ଣ କୁହାଯିବ ମନେ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ନାଁ ହେଉଛି ମୋନା ତ ମୋନା କ'ଣ କରୁଛି ନା ତୁଳସୀ ସହ ଦଶମରେ ମିଶିଲା ତ ତୁଳସୀ ନାଁଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ନାଁଟା ଅତି ପବିତ୍ର ବୁଝିଲା ନା ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଦିନ ସେ ଜାଣିବ ତୁଳସୀ ତା ସାଙ୍ଗ ବହୁତ ପ୍ରିୟ ତାର ଯେଉଁଦିନ ସେ ଜାଣିବ କ'ଣ ନା ତୁଳସୀର ଟାଇଟେଲ୍ ହେଉଛି ପିଲେ ମୁଁ ଆମ ଭାଷା କଥା କହୁଛି ତ ଯେହେତୁ ଅବଶ୍ୟ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯିବ ତ କିଏ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପର୍ସନାଲ୍ ଜାତି ବିଷୟ କହୁଛି ବୋଲି ଭୁଲ ବୁଝିବନି ଖରାପ ବୁଝିବନି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯଦି ଭୁଲ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ ଯଦି ମନେକର ମୋନା ଜାଣିବ ଯେ ତୁଳସୀ ଘର ହେଉଛି କିଛି ନୀଚ ଜାତିର ମନେକର ସେଠି କେମିତି କିଛି ଟାଇଟେଲ୍ ତାଙ୍କର ଅଛି ଯେଉଁଦିନ ସେ ଜାଣିଦେବ ତେବେ ସେଦିନ କ'ଣ ତୁଳସୀକୁ ତା ମନରେ ଟିକେ ଘୃଣା ଭାବ ପଳେଇ ଆସିବ ଘୃଣା ଭାବ ପଳେଇ ଆସୁଛି ବୁଝିଲା ନା
कारण आम घरे आमको बताई जे सेठी बोली जो टाइटेलटा अच्छी से गोटे निम्न जातिर निम्न कैस्टेडर गोटे टाइटल माने आम जो कहबा वासरमैन धोबा ए प्रकार लोक मानकर टाइटेल प्रायतः यहाँ तो आम मन घृणभाव पड़े आस कहीं घृणभाव कहीं एक्चुअली घृणभाव जात कला किए यही लोक जाते कर लोक मैंने जो पीपुल्स ही जात कर दायी ए लोक मैंने ही जो कैस्टेड सिस्टम अच्छी आमर जो कैस्टेड सिस्टम अच्छी से कैस्टेड सिस्टम दायी किए दिस पीपुल्स एमाने ही दायी क्लियर होची तो पिले कदापि क्या घृणा करन चिंता कर तुम यदि क्या घृणा करुच दिने तुमको मध्य किए दिन घृणा कर तभी रोना धोना नहीं तभी रोना नहीं क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी जैसा दोगे वैसा ही पाओगे अगर तुम किसी को घृण करोगे तो बदले में घृण ही पाओगे अगर किसी को प्यार करोगे दूसरे में प्यार ही पाओगे जो देता है वही पाता है और कोई देगा नहीं तो पाएगा कैसे क्लियर हो रहा है तो घृण करना छोड़ देना चाहिए घृण करना अच्छी बात नहीं है हर एक को प्यार करना चाहिए क्योंकि ये दुनिया प्यार से ही तो बना है ये दुनिया जो है प्यार से ही बना है द होल वर्ल्ड इज बाउंडेड बाय ए रूफ दैट रूफ इज लव ये जो संसार है ये जो जगत है ये जो पृथ्वी ये जो ब्रह्मांड है ये ब्रह्मांड सिर्फ एक ही रज्जु से बंधा हुआ है उस रज्जु के नाम है प्यार प्रेम उस रज्जु का नाम है प्रेम हर एक को प्रेम करना चाहिए वो वाला कबीर सिंह वाला नहीं है और लड़के हमारे लड़के सोच लेंगे कि कबीर सिंह वाला प्रेम नहीं वो वाला लव नहीं हाँ मैं जो प्रेम कहता हूँ मैं जो प्यार की बात कर रहा हूँ वो सात्विक प्रेम है यानी शाश्वत प्रेम है अभी तुम लोग पूछोगे कि शाश्वत प्रेम क्या है सर ये बात तुम समझ नहीं पाओगे शाश्वत प्रेम क्या है सिर्फ इतना बताता हूँ कि शाश्वत प्रेम यानी जो हम बोलते हैं प्योर लव जो बोलते हैं ना हम प्योर लव याद रखो प्योर लव रियल लव जो बोलते हैं रियल वर्ड जो आता है ना लव के पहले से रियल लव प्योर लव दिस प्योर लव इज कॉल्ड शाश्वत प्रेम बोलते समझ में आ रहा है कुछ तो सबको प्रेम करना चाहिए सबको प्रेम करनी चाहिए तो प्रेम के मामले में प्यार के मामले में एक छोटी सी बात बताता हूँ एक दिन भगवान बुद्ध जी को एक इंसान ने पूछा एक आदमी पूछा कि भगवान लाइक एंड लव पसंद करना और प्यार करना बीच में फर्क क्या है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइक एंड लव प्यार और पसंद करना प्यार करना प्रेम करना पसंद करना उसमें फर्क क्या है ज्ञानियों की ये जो उत्तर होती है आंसर्स होती है बड़ा अजीब होता है जिंदगी के दर्शन बता देते हैं वो तभी भगवान बुद्ध जी ने थोड़ी सी हंसकर मुस्कुराकर बोले कि देखो तुम्हारे बाड़ी में गुलाब की पेड़ है तो इंसान ने बोला जी आचार्य जी गुरुदेव पेड़ है तो भगवान बुद्ध जी ने कहा उस पर एक गुलाब की फूल खिली उस पेड़ में गुलाब के पेड़ में एक गुलाब की फूल खिली अगर तुम उस गुलाब की फूल को चाहते हो यानी पसंद करते हो तो तुम क्या करोगे उसे तोड़कर ले आओगे उसे क्योंकि तुम उसे पसंद करते हो अगर तुम उसे प्यार करते अगर उस गुलाब की फूल को तुम प्यार करते तो तुम क्या करते उसकी मूल में उसकी जो चेर है उसकी जो मूल है उसमें तुम पानी डालते क्लियर में आ रहा है समझ में आ रहा है कुछ क्या हमारे जो लाइक और लव क्या है लाइक और लव के बीच में डिफरेंस क्या है क्लियर होता है
लाइक यानी हम जिसे प्यार की नाम देते हैं, हम जिसे लव किया नाम देते हैं, जो कबीर सिंह वाला लव है ना, जो कबीर सिंह वाला, हाँ, जो कबीर सिंह वाला लव है वो सिर्फ लाइक है, लव नहीं। लव तो प्योर लव को समझाता है, जो भगवान बुद्ध जी ने बताए। देखो पिले, देखो, तो कहया तात्पर्य होला जे कदापि मध्य जो छोट जो फिल्म आम देखिकी पिले फिल्म रु शिखा चेष्टा करना, कारण फिल्म रे किछि नाही, जोटा लोक मान जोटा पीपुल मानकर डिमांड, जो लोकंर डिमांड प्रोड्यूसर डायरेक्टर सेटा ही बाहर करथांती। सेटा केते खराब केते भलो कि जानते एक्चुअली ठीक जिनिस जहाँ, राइट जिनिस जहाँ, जो सही है वो सिर्फ वेद में लिखा गया है, वेदास में, मन याद रखो, वेदास में है, वेद में लिखा गया है। और आचार्य शंकर, भगवान बुद्ध जी, स्वामी विवेकानंद, ये जो कहते हैं वही ठीक है, वही ठीक है। कबीर सिंह जो बोलते हैं वो ठीक नहीं है। तो तुम कबीर सिंह को अपना आइडल मत मान लेना। अगर आइडल मानना है तो भगवान बुद्ध जी, आचार्य शंकर, स्वामी विवेकानंद, इनको मानना चाहिए, रामकृष्ण परमहंस, इनको मानना चाहिए, क्योंकि वो सब वही वेद की एक एक अंग है, एक एक अंग है वेद की। वेद क्या कहता है वो लोग हमें समझाते हैं, इसलिए उनको मानो, उनको आइडियल करो, वो कबीर सिंह को नहीं। प्यार समझना है तो भगवान बुद्ध जी को फॉलो करो, स्वामी विवेकानंद जी को फॉलो करो, तो समझ सकते हो एक्चुअली व्हाट इज एक्चुअली लव। किसी को पा लेना प्यार नहीं है, किसी को पा लेना प्यार नहीं है, उसको लिए खुद की बलिदान करना प्यार है। और वो तो कबीर सिंह में वो तो पागल की तरह सिर्फ घूमता रहता है उसे पाने के लिए, तो वो प्यार कैसे हो गया? नहीं, वो ट्रू लव यानी प्योर लव नहीं है, रियल लव नहीं है, वो सिर्फ एक पसंद है, अट्रैक्शन जिसे कहा जाता है। क्लियर हुआ? तो पता आ गया आपको रियल लव क्या है और लाइक क्या है, पसंद क्या है और पसंद करना क्या है और प्यार करना क्या है, प्रेम करना क्या है। अगर तुम किसी को पसंद करते हो, सिर्फ तुम्हारे मन में ये चाहत होती है उसे पाने की, किसी भी तरह उसे पालूं, उसे हासिल कर लूं, ये हमारे पसंद होती है, जिसे हम प्यार के नाम देते हैं, पर वो प्यार नहीं है। अगर तुम सच में उसे प्यार करते तो उसकी भलाई सोचते, उसकी अच्छाई सोचते। समझ में आ रहा है कुछ? उसकी अच्छाई सोचते, कैसे वो अच्छा बने, वो बात सोचते। तुम तो सिर्फ पाने के चाहत में लगे हो, तो तुम प्यार कैसे कहते हो उसे? तो प्रेम वो नहीं है। जिस प्रेम में त्याग बलिदान नहीं होता है, वो प्रेम की बात ही नहीं कर सकता, वो प्रेम हो ही नहीं सकती, वो ट्रू लव हो ही नहीं सकती। वो सिर्फ एक पसंद है, एक अट्रैक्शन है, एक पाने की चाहत है, बस। समझ में आ रहा है कुछ क्या मैं बता रहा हूं? हाँ, ध्यान से समझना ये सब बातें को, क्योंकि हमारे जो टीनेजर्स है वो बहुत ही ऐसे कुछ ये जकड़ में आ जाते हैं, वो जो फल्स लाइन में, फल्स लाइन के जकड़ में आ जाते हैं और लाइन आउट हो जाते हैं, जिंदगी के लाइन्स आउट हो जाते हैं। नहीं, आउट नहीं होना है, हमें हमें जीतना है, जिंदगी को जीतना है, हमें जिंदगी को गंवाना नहीं है हमें। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, देखो आगे चलते हैं, कहाँ थे कहाँ चले गए। हाँ देखो, तो आम लेखक कौन कहते ना, फॉर लव कम्स मोर नेचुराली टू द ह्यूमन हार्ट, इट्स अपोजिट। तो घृणा ठू प्रेमटा मन रे जल्दी आसे, क्या घृणा करने अपेक्षा क्या भल पाइबाटा मन को जल्दी पलि आसे। बुझला ना? नहीं, तेणुक समस्त को भल पाइबा चेष्टा कर, समस्त को, पर्टिकुलाली जनक आका नहीं नहीं मुझे आका भल पाइबी, ताकू आका नहीं नहीं नहीं, समस्त को आम पाखे जो मैंने अच्छे समस्त को भल पाइबा, समस्त भल पाइबा देबा, तेबे ही तो भल पाइबा पाइबा, समस्त को भल पाइबा देबा तेबे ही पाई परिबा। आ जदि भल पाइबा देई नथिबा ते पाइबा केमती? जदि जीवन रे काहाकू गोटे 1 रुपीस रो चॉकलेट देइथिबो, तेबे हम आशा करबा गोटे चॉकलेट खाइबा बोली। तो जीवन काहाकू चॉकलेट देई नथिबा तो आशा केमती करबा पाइबा बोली? बुझा पड़ुछि? देखो, इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम इन प्रिजन, तो बोले ग्रीमेस्ट, सॉरी,
तो ग्रीमेस्ट अर्थ हूँ पिले दुख। ग्रीमेस्ट अर्थ दुख मन रख। ग्रीमेस्ट टाइम यानी दुख समय। तो लेखक तो ये राइटर कहते जे इवेन इन द ग्रीमेस्ट टाइम ऑफ प्रिजन। तो जिते लेखक बंदी गृह हाँ दुखपूर्ण ग्रीमेस्ट दुखपूर्ण जो दुखपूर्ण समय अतिबाहित करुले बुझला ना नहीं प्रिजन बंदी घर अतिबाहित करुले व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वेर पुश्ड टू आवर लिमिट। ये लाइन रे भल बुझा चेष्टा कर। आई वेर पुश्ड आवर लिमिट्स। देख लिखाई पुश्ड टू आवर लिमिट्स यानी कि दर्द झेलने से बाहर हो गया यानी कि आम कौन जो कष्ट सहीबारू बाहरी जा सह्य सीमारू बाहरी जा तो कहवा पुश्ड टू आवर लिमिट्स सहीबा सीमारू बाहरी जा बुझा पड़ुची। तो लेखक कहते जिते आम बंदी गृह जानच तुम मन अच्छे आगुरी पढ़ी 30 वर्ष काल बंदी गृह थे बुझला ना नहीं। तो जो 30 वर्ष काल से जो कष्ट कमरेड साथी मैंने जो कष्ट सही कौन होता ना ताहा सह्य शक्ति बाहर चल जाऊला। आई वुड सी ए ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स। तो सेतेबेले मध्य ग्लिमर ग्लिमर अर्थ पिले आम कौन झलक। ग्लिमर अर्थ गोटे झलक बुझला ना नहीं। ग्लिमर ग्लिमर अर्थ झलक मन झलक झलक तो ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन गार्ड। तो लेखक कहते जितेबाला आम प्रिजन रे बंदी थिलु से बहुत अत्याचार कराउतिला मुझे गोटे गार्डर मनरे मानविकतार झलक देखी पार्थी जस्ट फॉर परहैप्स फॉर ए सेकेंड। तो गोटे सेकेंड भी ही पारे गोटे सेकेंड भी ही पारे कि ता मनरे मानविकता अच्छी तो ताको जदि बढ़ई दिया तो से कौन अधिक हो पार। बट इट वाज एनफ टू रीएश्योर मी एंड कीप मी गोइंग। तो रीएश्योर अर्थ हूँ सांत्वना देवा। रीएश्योर अर्थ सांत्वना देवा मन रख सांत्वना देवा क्लियर है। तो लेखक कहते तार जो मानविकता गोटे सेकेंड भी क्यों ना हो तार जो मानविकता कौन करथिला ना मो पे प्रचुर थिला मते संतोष देवाई सांत्वना देवाई एंड कीप मी गोइंग आगो मते बढ़िया मते साहाय्य करथिला। मेन्स गुडनेस इज ए फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश। एक्सटिंग्विश लिभि जिबा। एक्सटिंग्विश अर्थ मन रख लिभि जिबा लिभि जिबा क्लियर होची। तो लेखक कहते मेन्स गुडनेस तो मनुष्यर जो भल गुण इज ए फ्लेम ता गोटे शिखा अटे। फ्लेम अर्थ बोले कौन शिखा ता गोटे निआर शिखा अटे बुझला ना नहीं। दैट कैन बी हिडन ता लुचि थाई पारे बट नेवर एक्सटिंग्विश ता कदापि लिभिबनी नेवर एक्सटिंग्विश लिभिबनी बुझला ना नहीं। तो आम पाखे भल गुण अच्छी बहुत लोग कहती जे मु खराब गोटे गोटे आदत हो लोक मानकर जे कहिबार जे मु खराब मो पाखे से भल गुण ना ए प्रकार ना समस्त पाखे भल गुण अच्छी से जो भल गुण रूपक अग्निटा आम भर लुचि जाइए बस ताकू ही तो चिन्हबार अच्छे लोक मान ताकू ही चिन्हबार अच्छी चिन्हीदेले तुम मैंने मनुष्य हो गले। तो सेटा लुचि जाइए केवल लिभिबार चांसेस ना आम मनुष्य आम पाखे मनुष्यत्व गुण निहाती रहिबो। तो से मनुष्यत्व गुणर अग्निटा लुचि थाई पारे लिभिबार चांसेस ना क्लियर है। पाठ बुझा पड़ा पढ़ नेक्स्ट जदि किसी डाउट थी तेज पचार। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।